Hello dear students. So today we shall discuss the topic from the fifth unit, and that is pumped storage hydropower. Basically in this unit we have to study the different energy storage mechanisms. So different energy storage techniques we have to discuss in this unit. So the first technique we are going to discuss is the pumped storage hydropower. Okay, so So let us have the overview of the hydropower technology first. So we have various types of hydropower technologies, as you might be aware of the conventional technology, that is through the dams or reservoir we produce the electricity. We store the large mass of water, from the river or any water body, into the dam, a large size dam, and thereafter when we store the sufficient water in the dam, then we use the kinetic energy of that water, okay the potential energy of that water basically, okay and that is made to flow through a closed conduit or pipe, and we utilize the kinetic energy of the stored water into the generation of electricity. So when the high speed water, okay from the opening is allowed to move the turbine, then the turbine rotates the generator, and we produce the electricity. So this impoundment, diversion, everything we have seen. Now these are the basics, we know, and this is the pumped storage, the third one, that is also comes under the hydropower technology, so that we will discuss today. Now, pumped storage hydropower is which type of hydroelectric energy storage? It is a configuration of two water reservoirs, at different elevations, that can generate power as water moves down through a turbine. So this draws the power as it pumps water to the upper reservoir. So this is the I will explain with the diagram also. But what is the concept here? Here we have the two water reservoirs which are kept at different heights or different elevations, and that can generate power, as the water moves down the turbine. So this draws the power as it pumps water to the upper reservoir. So this PSH, pumped storage hydropower capabilities, can be categorized as open loop, where there is an ongoing hydrologic connection to the natural body of water, or we can categorize it as a closed loop, where the reservoirs are not connected to outside body of the water. So now you see the configuration. This is the open loop pumped storage hydropower, and this is the closed loop pumped storage hydropower. So here in both the cases we have two reservoirs at different elevations. So you can see the upper reservoir जो है वो थोड़ी हाइट पर होता है और लोअर रिजर्वायर उससे नीचे होता है. ठीक है. सो दोनों जो है वो डिफरेंट हाइट पे होते हैं. यहाँ पर भी क्लोज लूप पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर में भी क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अपर रिजर्वायर जो है वो एक सम हाइट पे है और लोअर रिजर्वायर उससे नीचे. ठीक है. और जो अपने कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होता है वो सारे पार्ट्स इसमें भी होते हैं, जैसे पेन स्टॉक. पेन स्टॉक उस टनल को बोलते हैं जिससे वाटर फ्लो करता है. पावर हाउस मींस जहां पर जनरेटर और सारी असेंबलीज होती हैं अपनी. जनरेटर्स, मोटर्स एंड टर्बाइन्स. सो तो इसमें क्या है, ओपन लूप का क्या मतलब हुआ कि जिसमें कंटिन्यूअसली ये नेचुरली फ्लोइंग वाटर से कनेक्टेड है, कंटिन्यूअसली. और यहां पर क्या होता है, यहां पर दे आर नॉट कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू द नेचुरली फ्लोइंग वाटर फीचर. सो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो है ये नेचुरल फ्लो से लगातार कनेक्टेड रहता है और यहां पर ये कनेक्टेड नहीं रहता. नाउ व्हाट हैपेंस, क्यों जरूरत है इसकी? सो ड्यूरिंग स्टोरेज वाटर पंप फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर वन. तो होता क्या है कि जब मान लो कि रात के समय में जब बिजली का टैरिफ कम है या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं कि पानी को वी पंप द वाटर फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर. ठीक है. हम पानी को रात में स्टोर कर लेते हैं. जब बिजली की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं रहती या बिजली का रेट कम रहता है रात के टाइम पे, लेट से,
तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि वाटर को पंप करके ऊपर स्टोर कर लेते हैं, नीचे वाले रिजर्वायर से ऊपर वाले रिजर्वायर में। ओके, और जब हमें पीक डिमांड को मान लो एड्रेस करना है, ओके, तो व्हेन वी हैव टू मीट द पीक डिमांड, ओके, और इसके अलावा अगर हमें सपोज करिए कि आपको जब महंगी टैरिफ होती है ड्यूरिंग द डे, उस टाइम पर जब हमें वाटर को हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब हम क्या करते हैं, अपर रिजर्वायर से नीचे के रिजर्वायर में वाटर को रिलीज करते हैं। और रिलीज करने से क्या होता है, द वाटर हैज द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल रोटेट द टरबाइन एंड योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। सो पंप्ड स्टोरेज का बेसिकली मतलब ये है कि जब डिमांड कम रहे तो आप वाटर को पंप करके ऊपर स्टोर कर लीजिए एज अ डैम, ओके, अपर रिजर्वायर में, और जब आपकी पीक डिमांड हो उस टाइम पर आप उस स्टोर्ड वाटर को जनरेट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ऑपरेशन तो मैंने बता ही दिया, देयर आर टू पूल्स ऑफ वाटर, ओके, सो अपर पूल इज कॉल्ड एम्पाउंडमेंट, लोअर पूल दैट इज नेचुरल लेक, रिवर और स्टोरेज रिजर्वायर। सो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम पीक पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तब के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। आपके घर में आप बैटरीज यूज करते हो, व्हाई डू वी यूज बैटरीज, टू स्टोर पावर। व्हाई टू स्टोर पावर, लेट्स से व्हेन the electricity will not be available, okay, the grid electricity or the grid power is not available to you, then you will use your battery, that's why you store in your battery, ओके। तो उसी तरह से हम एनर्जी स्टोरेज के डिफरेंट साधन भी हो सकते हैं। सो उसमें से एक है पंप्ड स्टोरेज। सो जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, सस्ते में टैरिफ है, नाइट के टाइम पर जब पीक डिमांड कम है, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले रिजर्वायर से वाटर को पंप करके ऊपर वाले रिजर्वायर में स्टोर कर सकते हैं। और जब अब चूंकि स्टोर हो गया तो क्या हुआ, एक बैटरी पावर की तरह हो गया, आप जब चाहे विद इन अ सेकेंड उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जब आपके पास पीक पावर डिमांड होगा, देन यू विल डू व्हाट, you have the water stored already stored in your upper reservoir, so you can allow them to flow, okay, from, and it will naturally flow, okay, with the effect of gravity। so तब वो क्या करेगा, वो पावर जो आपने स्टोर कर रखा है पानी को अपर रिजर्वायर में, जो कि अपर हाइट पे है, वहां से जब पानी को आप छोड़ेंगे नीचे रिजर्वायर में, तो क्या होगा, then you will have the sufficient power generation, okay। So this is the advantage of pumped storage, that it can meet the demand of production of peak power, क्योंकि पीक पावर के टाइम पे टैरिफ भी महंगा होता है, okay, so that you can meet। and सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कैन बी बिल्ट एनीवेयर विथ रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर। अगर नीचे लेक है, नीचे रिवर है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर है, ओके, तो आप माउंटेन या किसी भी अपर रीजन पर के जो कि थोड़ा सफिशिएंट हाइट पे हो, वहां पर आप इंपाउंडमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसमें देखिए, एट द टाइम ऑफ लो डिमांड क्या होता है, पंप स्टोरेज सिस्टम का कंसेप्ट क्या है कि जब डिमांड लो है, ओके, तो उस टाइम पर आप क्या करिए, पावर टू द कंज्यूमर्स तो आप थोड़ा ही दे रहे हैं, ओके, बिकॉज डिमांड लो है, तो very less power is being fed, being given to the consumers, okay, to meet their demand। बट जो सरप्लस पावर है, जब डिमांड कम है तो कंज्यूमर को कम पावर देना है, तो सरप्लस पावर को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज दैट पावर इन द पंप्स टू रेज द वाटर इन द अपर रिजर्वायर। यू कैन सी दैट दिस इज द लोअर रिजर्वायर, दिस इज द अपर रिजर्वायर। तो जब पीक डिमांड कम है तो कुछ पावर को हम पंप्स के द्वारा पंप्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन पंप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू द अपर रिजर्वायर इन द फर्स्ट डायग्राम। नाउ in the second diagram, at the time of high demand, so what we do in the time of high demand, we have to give the power to the consumers, because all the power is required to give to the consumers. So whatever power is coming from your power plant, that is okay, but this your pumped storage hydroelectric power plant will add up, okay। So at this time what will happen, you have the generator here, you will allow the water stored in the upper reservoir to flow back to the turbine, and then it will generate, and then it will meet some amount of power or some portion of the demand
of the consumers, power demand to the consumers. So this is the concept of pumped water storage. Now what is compressed energy, air energy storage? Now one way of energy storage was your pumped hydro storage. Another way of storing the energy is compressed air energy storage. Okay, so यहाँ पर हम एयर को कंप्रेस करके भी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. तो आपको इस यूनिट में यही स्टडी करना है कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर. और बैटरी तो सभी को मालूम है कि बैटरीज के थ्रू हम पावर स्टोर कर सकते हैं, बट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन स्टोर द पावर. ओके, ताकि हमें जब जरूरत हो तो विद इन अ सेकेंड हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें. So the compressed energy, air energy storage is one among the other storage plants. Okay, that is flywheel, battery, superconductor, है ना. तो उस तरह से ये एक स्टोरेज का प्लांट है. एंड CIS is a combination between pure storage plant and power plant. Okay, so pure storage plants जो है वो जैसे बैटरीज और सुपर कंडक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, एंड पावर प्लांट्स जो कि कंज्यूम कर सकते हैं फ्यूल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये. Okay, so first underground salt cavern was patented by state level in 1949, and in 1978 the first CIS. Okay, so पहले टेक्नोलॉजी पेटेंट हुई थी, and then 1978 first CIS plant, that is compressed air energy storage plant, which was of 290 megawatt capacity, that was built at Huntorf in Germany. Okay, and in 1991 another 110 megawatt plant was built in McIntosh, Alabama, USA. Now what is the basic principle of this compressed air energy storage system? So the components of this is similar to the gas turbine power plant. You might have studied the gas turbine power plant, so the component is similar to this. Okay, so we have the gas turbine configuration and we have the CIS configuration. Okay, so here they are the series of compressors. Okay, the turbine is there, they are the clutch. Okay, to govern the pressure. Okay, there is a motor generator. Here it is an intercooler. Valves are there to regulate the operation, and cavern is there. Now the CIS process works by pumping air into a vessel or cavern when off peak demand or low cost electricity available. तो जैसे पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए किया था कि जब पीक पावर डिमांड लो पे रहता है, लो पावर डिमांड रहता है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि वाटर को पंप कर देते हैं, और फिर जब पीक पावर डिमांड रहता है तो हम उसी वाटर को यूटिलाइज करते हैं. उसी तरह से यहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी सिस्टम में भी, स्टोरेज में भी हम क्या करते हैं कि जब ऑफ पीक डिमांड रहता है, ओके, तब हम क्या करते हैं, कंप्रेसर्स को, उस पावर को हम यूज करते हैं लो पीक डिमांड में. हम कंप्रेसर्स को यूज करके पावर एयर को पंप इन करते हैं. ओके, एक वेसल में या कैवर्न कह सकते हैं उसको. तो एक वेसल आपको दिखाया अभी, ये दिस इज अ वेसल, एक बहुत बड़ा वेसल है और इसको कैवर्न कहते हैं. तो कैवर्न में हम एयर को पंप इन कर सकते हैं. कंप्रेस करके तो रख ही सकते हैं एयर को, तो उसी तरह से हम उसको पंप इन करके एक वेसल में या कैवर्न में रख सकते हैं. ओके, जब हमें लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पीक डिमांड, लेट से नाइट के टाइम पे हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है टैरिफ लो होता है, डे के टाइम वही ज्यादा हो जाता है. तो जब लो है, उस टाइम पर लो टैरिफ है, उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन यूटिलाइज इन पंपिंग द एयर इन टू द वेसल. ओके, और जब हाई पीक डिमांड होगा, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रेशराइज एयर को रिलीज करेंगे. ओके, और सीरीज ऑफ अपने जो कंप्रेशन है उसके थ्रू, एंड देन उसको हम टरबाइन में एक्सपांड करेंगे और उस कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा. तो यहाँ पर ऑपरेशन कैसा होता है, फर्स्ट इज द कंप्रेशन प्रोसेस, देन एयर स्टोरेज प्रोसेस, एंड देन द एक्सपांशन प्रोसेस. ओके, तो इस तरह से ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो इस तरह पूरी की जाती है. सबसे पहले कंप्रेशन प्रोसेस, एंड देन क्या होता है, एयर का स्टोरेज प्रोसेस, एंड देन उसको एक्सपांड करते हैं. ठीक है, तो कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू रन अ चेन ऑफ कंप्रेसर्स दैट इंजेक्ट एयर इनटू द रिजर्वायर. ओके, तो
क्योंकि हमें हाई प्रेशर पे एयर को क्या करना है, स्टोर करना है रिजर्वायर में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ कंप्रेसर से हम लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ओके। सो इस तरह के सीरीज ऑफ कंप्रेसर से हम पहले एयर को कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके क्या करते हैं, एयर रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्रेशन चेन यूज ऑफ इंटरकूलर्स फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द इंजेक्टेड एयर, ओके। सो हमें क्या करना है, एयर को सिर्फ हाई प्रेशर पे कंप्रेस करना है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, बट यू नो दैट इफ यू विल कंप्रेस समथिंग देन टेम्परेचर विल राइज। सो हर स्टेज पर, after each stage of compression, you have to reduce the temperature of the injected air, okay। so जो air flow का जो एयर फ्लो जो है उसको कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर को हमें रिड्यूस करते रहना है, ठीक है। दैट वी डू विद द वाटर फ्लो, ओके। तो हम वाटर जेट के थ्रू उसको कूल करते रहते हैं। Then comes your expansion process. So expansion process में क्या होता है, the air is released from the cavern, okay। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्टोर किया था एयर उसको हम रिलीज करते हैं, एंड देन इट इज कंबस्टेड इन फ्यूल कंबशन चैम्बर फॉर रोटेटिंग द टरबाइन। अब चूंकि हमें यूटिलाइज करना है, पीक पावर डिमांड है, तो हमें उस कंप्रेस्ड एयर को यूटिलाइज करके वापस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम एयर को जो कैवर्न में हमारे पास जो यहाँ पर एयर रिजर्वायर में स्टोर किया था उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद हम उससे फ्यूल का कंबशन करते हैं कंबशन चैम्बर में, एंड देन वी यूटिलाइज इन रोटेटिंग दिस टरबाइन, ओके। एंड टरबाइन इज coupled to the generator, so this will also turn the generator and we will get the electricity generated, okay। so this is the expansion process. Now what are the advantages? एडवांटेज क्या है इस कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, कि CO2 एमिशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाकी कन्वेंशनल पावर प्लांट्स की तरह यहाँ पर कोल या पेट्रोलियम को हम बर्न नहीं करते, इसलिए यहाँ पर CO2 एमिशंस, कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं। सो इट रिड्यूसेस द CO2 एमिशन। नो फ्यूल कंजम्पशन, since it is a adiabatic system, this term is from the thermodynamics, you might be knowing, ओके। सो ये जो है सीरीज ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू हो रहा है, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन की कोई जरूरत नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्योर एनर्जी स्टोरेज नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बैटरीज और बाकी सब सोर्सेज की बात करें, सो दिस इज नॉट द प्योर एनर्जी स्टोरेज, एंड इट में कॉन्टेमिनेट द वाटर ऑल्सो, ओके, एंड द सॉल्ट वेस्ट, ओके। सो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है। सो टुडे इन द टुडे सेशन वी सॉ two energy storage system processes, okay। so by these through two processes we can store. There are some more energy storage process, okay, and techniques or methods that we will discuss in the next class.